ये दोनों 5वें नंबर पे हैं। हम लोगों ने इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट देखे हैं, अपनी पॉपुलेशन को हैंडल करना, डील करना। वहाँ पे कनेक्टिविटी की बात की जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, वो वाकई एक अलग लेवल पर जो है वो चला रहे हैं। पहले 100 एयरपोर्ट्स जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है दिल्लीज IGI लीड्स ग्लोबल एयरपोर्ट रैंकिंग एज 5 इंडियन एयरपोर्ट इन टॉप 100, सिंगापुर ऑन टॉप। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो से चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए मैं ब्लॉग चैनल लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाह, 28वें नंबर पे दिल्ली का बेंगलुरु है तो ये दोनों 5वें नंबर पे हैं। 14 टाइम। भाई उसका एयरपोर्ट वाकई कितना 5 लेवल Indian पे है। airports have made it to the world's top 100 best airports list for the 2026 Skytrax World Airport Awards. Singapore's Changi Airport has topped the rankings for the 14th time. बहुत बड़ी बात Delhi's है। Indira Gandhi International Airport leads India at 28th position globally, rising 4 spots from 32nd last year. It is the only Indian airport in the world's top 30. The airport has also been named Best Airport in India and South Asia for the 8th consecutive year at the Skytrax Wow. World Airport Awards. Bengaluru's Kempegowda International Airport ranks 41st globally, while Hyderabad's Rajiv Gandhi International Airport stands at 43rd. Goa's Manohar International Airport is at 64th, and Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport takes the 66th spot. ये काफी हैरानी वाली बात All है। 5 airports have climbed from their previous positions. पिछली से तो The बेटर ही awards हो are गई है। based on the World Airport Survey nahi. conducted by Skytrax, which captures feedback from passengers across more than 100 nationalities over a 7-month evaluation period. The survey assesses key parameters such as airport facilities, service quality, and overall passenger experience. Delhi Airport has also improved its rankings among the world's top 10 airports in the 70+ million passenger category. It has secured the 3rd position in 2026, up from 8th in 2025. This is remarkable considering the airport handles over 70 million passengers annually. Now let's look at the global top 10. Singapore's Changi Airport was named the world's best airport for 2026, marking the 14th time it has received the top title since 2000. Changi also claims the top spot for the world's best airport dining, world's best airport in the 60 to 70 million passenger category, world's best airport immigration service, and the best airport in Asia. बहुत अच्छी होगी। Incheon International Airport in Seoul ranks 2nd, up from 4th last year. Tokyo International Airport Haneda holds 3rd position, unchanged from last year. Hong Kong International Airport is 4th. Tokyo's Narita International Airport remains at 5th. Rounding out the top 10 are Paris Charles de Gaulle at 6th, Rome Fiumicino at 7th, Istanbul Airport at 8th, and Munich Airport at 9th, Vancouver International at 10th. Notably, Hamad International Airport in Doha, Qatar formally announced in March 2026 that it was withdrawing from the international rankings and awards events, including the Skytrax World Airport Awards, in order to prioritize safety amid the conflict in the Middle East. The rankings reflect gradual improvements in passenger experience, infrastructure, and service quality across India's key aviation hubs. The spread of rankings across 5 cities shows that improvements are now more broad-based rather than limited to 1 or 2 airports. Bengaluru's Kempegowda International Airport has been named the best regional airport in India and South Asia at the Skytrax World Airport Awards, marking its 3rd consecutive win. Hyderabad Airport received the award for Best Airport Staff Service in India and South Asia. But challenges remain. Asian airports continue to dominate the global rankings, with Singapore Changi Airport retaining the top position, followed by major hubs in South Korea and Japan. These airports set benchmarks in seamless transit, cleanliness, and passenger comfort, underlining the gap Indian airports still need to bridge. India's aviation sector is on an upward trajectory. With sustained investment in infrastructure and services, these airports are competing on the global stage. For more news and updates, keep watching Live Mint. नाइस, अच्छे है। लाइक
अगर हम लोग बात करें जो टॉप रैंकिंग की बात की गई है, मुझे लगता है कि अपने पिछले स्थान से बेहतर स्थान की तरफ जाना ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट लेकर आए हो। भाई मैं तो कहूँगा कि भाई पहले 100 एयरपोर्ट्स जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन, उनमें भी अपना स्थान कहीं ना कहीं बनाना, खाली एक एयरपोर्ट का नहीं, आप मल्टीपल एयरपोर्ट्स के साथ जो है वो अपने आप को वहाँ पर लिस्टेड आप वहाँ पे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई ये भी जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई आप सहूलतें जो है वो इतनी अच्छी दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई 150-200 एयरपोर्ट्स तो हैं नहीं, या कोई इसके आसपास है नहीं, हज़ारों के हिसाब से एयरपोर्ट्स हैं। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो भाई एक टफ कंपटीशन है। हाँ, सिंगापुर के एयरपोर्ट की बात की जाए, वैसे इंडिया का तो हमने कोई एयरपोर्ट देखा नहीं है, लेकिन सिंगापुर के एयरपोर्ट की बात की जाए तो आपको वाकई में वो एक अलग दुनिया जो है महसूस जो है वो होती है, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी की बात की जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, वो वाकई एक अलग लेवल पर जो है वो चला रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जैसे जो है भाई मेरे लिए हैरानी की ये चीज़ थी कि मुंबई जो है, क्योंकि वो एक कमर्शियल हब भी है, वहाँ पे आपको पोर्ट सिटी भी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। नो डाउट जो कैपिटल है वो दिल्ली है इंडिया का, लेकिन मुंबई जो है वो सबसे नीचे था टॉप 5 में जो इंडिया के आ रहे हैं। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैरानी थी। मुझे ये उम्मीद थी कि भाई दूसरे नंबर पर होगा, हालांकि दूसरे नंबर पर जो है वो बेंगलुरु का था। लेकिन डिपेंड करता है ना कि क्राइटेरिया को कौन मीट करता है। हाँ। बट मैं ये बात बोलूँगी कि जहाँ पर मौज़म ने सिंगापुर के एयरपोर्ट की बात की, तो नो डाउट हम लोगों ने इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट वर्चुअली देखे हैं और हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो लिस्ट में आना बहुत बड़ी बात होती है, और जिस तरीके से अगर हम सिंगापुर के एयरपोर्ट की बात करें तो वाकई में वहाँ पर आपको बहुत ईजी आपकी हर चीज़ मतलब हो जाती है, जिस तरीके से एक गाइड किया जाता है। हालांकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है, बट ये है कि आपको उस तरह से कोई दिक्कत नहीं आती कि आपको बहुत ज़्यादा लाइंस में लगना पड़ रहा है इमिग्रेशन काउंटर पर, कुछ ऐसा नहीं होता। आप बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से चीज़ों से मतलब निकल जाते हो, क्रॉस कर जाते हो। फिर कनेक्टिविटी वहाँ से वो चीज़ बहुत अच्छी है कि पैसेंजर कितनी आसानी के साथ, अगर आपको कैब लेनी है आप कैब ले लो, फिर वहाँ पर ही आपको सुविधा दी जाती है कि क्योंकि आप टूरिस्ट हो तो आपके लिए एक कार्ड बना दिया जाता है मेट्रो का, और आप उसको जो है वो इस्तेमाल करते हो। तो नो डाउट यार ये तो एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी और वहाँ से बाहर निकलने की सहूलतों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट के अंदर भी एंटरटेनमेंट की बात करें ना, तो बहुत एंटरटेनमेंट है। जैसे वहाँ पर अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, अच्छा खासा वेटिंग टाइम है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सिनेमा है, आपके लिए अंदर ही उन्होंने एक मोनो रेल जो है वो चलाई हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं, अलग ही दुनिया लग रही एक अलग ही दुनिया जो है वो कह सकते हैं कि वो है। एक वो वाटरफॉल टाइप आपको जो नजर आता है, झरना सा, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। बट मैं ये बात बोलूंगी कि अच्छी बात यह है कि आप उस रेस में आकर अपने आप को मजीद अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए सिंगापुर नो डाउट, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत मतलब अगर उसके काम की बात करें, वहाँ पर बहुत काम हुआ है, उन लोगों ने एक तरक्की की है। बट अगर हम लोग एरिया वाइज भी बात करें, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतनी पॉपुलेशन को संभालना, उनको मैनेज करना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। चाहे हम लोग मतलब मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ को ना डिनाई नहीं कर सकते कि इतनी पॉपुलेशन को हैंडल करना, डील करना डेली टू डेली बेसिस पर, तो ये डिफिकल्ट टास्क रहते हैं। और दूसरा ये भी चीज़ देखना कि वहाँ पे सिर्फ आपको एक एयरपोर्ट जो है वो नज़र आता है, लेकिन अगर ऑन दी अदर साइड आप इंडिया की बात करें तो मल्टीपल एयरपोर्ट्स हैं आपके पास, उन्हें हैंडल करना, मैनेज करना, खाली एक बंदा तो इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी छोटा देश चलाना और बड़ा देश चलाना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है इस चीज़ में। बिल्कुल, एंड ओवर द इयर्स हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, स्पेशली अगर हम लोग एयरपोर्ट्स की बात करें, आपको बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट हर जगह पर नज़र आ रही है। आप भी ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, और आपको क्या लगता है कि बड़े देश और छोटे देश, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं या नहीं करती हैं। कमेंट सेक्शन में ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।